ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ 12 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅੱਛਾ, 12 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਠੰਡ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਝੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੌਂਦਿਆਂ ਕਿਨੂੰ ਅੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਅੱਧ ਮੁੜ ਬੱਚਾ ਕਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਮਿਆਰੇ ਦੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने सयाद ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਇਬਨ ਸਯਾਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਆਪਣੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਬਨ ਸਯਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਗਲਬਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੂਰੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਝ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਬਨ ਸਯਾਦ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਮਦਿਆਂ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉੱਠ, ਅਬੁਲ ਕਾਸਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪੜਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू एक, अगर मैं अपने दिल विच कोई गल रख के तेनू पुछां ते तू दस लेंगा, तेनू पता लग जांदा है? कहंदा तुसीं पुछो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह दुखान दी अल्फाज अपने ज़हन च रख के, दिल च रख के उन्होंने पुछया भी दस मैं की सोच रहा, या की बोल रहा, या की पढ़ना चाह रहा। ते वो कहंदा अरबी दुख दुख दुख, यानी कोई कहना चाहता सी लेकिन उन्होंने शैतान साथ नहीं दे रहा ना। दुख दुख करके रुकिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी तू बस इस तो अगे नहीं जाएगा, जो कुछ तो करना है ना पिया, इस तो अगे नहीं तू जा सकता, यही है तेरा टोटल। फिर नबी अलैहिस्सलाम वापस चले आए उत्थे। ये मुख्तलिफ अहादीस की कुतब मेरे ख्याल सियासत ये शायद बुखारी मुस्लिम च किसी च रवायत मौजूद है। सो ये कोई ज़रूरी गल नहीं है कि अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि मैनू कोई इल्हाम हुंदा है तो उहदा सिरे तो इनकार नहीं करना चाहिए कि बई उहदे नाल कोई गड़बड़ नहीं हुंदी, उहदे नाल कोई हेरा फेरी नहीं हुंदी।
ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸ਼ੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਆਇਤ 221। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन। क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਨੱਜ਼ਲੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਅਫਾਕਿਨ ਅਸੀਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਯੁਲਕੂਨ ਅਸਮਾ व ਅਕਸਰਹੁਮ ਕਾਜ਼ਿਬੂਨ। ਯੁਲਕੂਨ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। व ਅਕਸਰਹੁਮ ਕਾਜ਼ਿਬੂਨ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੱਤੀ ਠੰਡੀ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਇਲਹਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ 2.5 ਸਾਲ ਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ 15 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਮਾਮਦੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਕੱਢੋ, ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਰਅਸਲ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਵਰੀ 1886 ਚ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਲਾ ਕਸ਼ੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਅਮੂਮਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਲਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਸਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ 1886 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1886 ਚ ਇਹਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ। 20 ਫਰਵਰੀ 1886 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਈ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟੇਗਾ 40 ਦਿਨ ਤਨਾਈ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਚਿੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਜਿੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਕੈਫ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਚੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ ਸ਼ੁਆਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। हाँ वशवारा यत्तबिऊहुमुल गावून, हाँ ठीक है वो शायरां दे और शायर तो पैरवी किया करते हैं उनके गुमराह लोग। इस गुमराह शख्स की पैरवी करने वाले लोग भी गुमराह ने। हाँ जी, कितनी फिट आउंदी है दे उत्ते ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਕੱਲ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ करे कि 10 से करवा चुकी जिना लेकिन फिर भी कहने को ये कवारी है, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ
حضرت حسان بن ثابت ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਨਾ। ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫੀ ਕਲਮਾਤ ਕਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਨੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਣ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਆਨੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ आमिर नजीर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। हाँ वो अल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो कबूल करे, बस मैं यही कहता हूँ, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं, कुछ नहीं ਉਹ चाहिए। ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਬਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਉਹ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत अली शुक्रिया। अहमद उस्ताद को शेर नहीं, आपने वो कॉन्वर्सेशन, सबसे पहले तो मैं ना मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये मुझे याद भी नहीं है, ये मुझे याद भी नहीं है कि मेरी कब गुफ्तगू हुई है, और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की हुई ये। तो सबसे पहले तो मैं बाबर मेहर भाई के चैनल पे जाके जब मैंने ये देखी है, जब आपने शेयर किया है, तो मैंने वहां पर कमेंट भी किया है जज़ाकल्लाह बाबर मेहर भाई का, इन्होंने बड़े बड़े खजाने छुपा के रखे हुए हैं। और कल मैंने वो गुफ्तगू सुनी, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये मैं ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो वैसे मैंने देखा है कमालात की, वाकई में मतलब अपने मुंह से मियाँ मिट्टू नहीं बन रहा, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो गुफ्तगू वाकई सुनने लायक है। वो फिर मैंने अपनी वालिदा के साथ भी शेयर की है, और अपने वालिद को भी वो मैंने ना शेयर की थी गुफ्तगू, कि वो भी उसको सुन के, तो मेरे वालिद हैं वो भी मतलब काफ़ी अच्छा मतलब बोलते हैं, बल्कि वो कुरान मजीद का तर्जुमा भी पंजाबी में कर रहे हैं। तो उनका भी काफ़ी शगफ है इससे ना, दीन इस्लाम से क्लोज है। मेरी वालिदा खुद MA इस्लामियात हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हैं बड़े अच्छे लेवल पर, तो वो भी मुझे काफ़ी गाइड करती हैं, हमने तो उनसे दीन सीखा है। तो उनको भी मैंने भेजा है कि कोई कमी कोताही है तो उसमें वो निकाले। तो अगर वो आपने गुफ्तगू सुनी है तो आप बताएं, अगर उसमें कोई कमी कोताही है तो वो मेरी लाया करें सामने मेरे दोस्त, बजाय इसके कि तारीफ़ तो अल्लाह की है, उसी को ज़ेब देती है तमाम तारीफ़। मैंने वो नहीं सुनी, मैंने तो बस सिर्फ शेर मारा है। मैंने सच्ची बात है कि वो नहीं सुनी, मुझे नहीं पता वो कब की गुफ्तगू है, शायद पुरानी आप कह रहे हैं पुरानी गुफ्तगू है, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन बहरहाल वो वाक़तन अच्छी होगी, यकीनन अच्छी होगी, तभी लोग तारीफ़ करते हैं। जब कोई देखें कोई चीज़ अच्छी आप करते हैं या अच्छा काम आपसे होता है, तो वो मोहताज नहीं होता कि आप खुद किसी से दाद तलब करें या उसके लिए फेक प्रोजेक्शन करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें अपनी मुखलिसाना तौर पर कोशिश जारी रखनी चाहिए। जब अल्लाह ताला के यहाँ वो बात मकबूल हो जाएगी, तो असल चीज़ तो ये है कि अल्लाह के यहाँ मकबूल हो और अल्लाह से हमें ये दाद मिले, अल्लाह से हाँ ये जो है शरफ हासिल हो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। दुनिया के बंदे तो कई मुसलमान अपने भाई भी को टांगे खींच रहे होते हैं, कई हसद और बुग़्ज़ में भी मुब्तला लोग होते हैं एक दूसरे का, ये सब हर तरफ है। ये नहीं कि भाई सिर्फ आपके साथ या मेरे साथ या फलां बंदे के, सब के साथ होता है, हमें भी किसी का होगा, हमारे बारे में भी किसी को होगा। तो असल चीज़ है कि जब आप कोई कोशिश मुखलिसाना तौर पर करते हैं किसी के लिए, अपने दीन के लिए, अगर अल्लाह ताला कबूल कर लेता है तो वो खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त में, आपके काम में वो तरक्की देता है, और आपको किसी को कहने की और वो भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये जारी रखें, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसको पहले भी एक्नॉलेज करके ही मैंने कई लोगों को भी कहा है ये कि भाई यार एक बंदा काम कर रहा है, हो सकता है आपको पसंद ना हो, किसी एक बंदे को वो पसंद ना हो, लेकिन अगर दूसरे लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें उसको बंदे को स्पेस देनी चाहिए कि वो करे काम। कई हमारे भाई हैं, उनका अंदाज हमें भी पसंद नहीं होता, तो
उसका मैक्सिमम इलाज ये है कि हम पीछे हट जाएं, लेकिन उसको करने दें। अगर कोई लोग पसंद कर रहे हैं या मुखालिफ उससे लाजवाब हो रहे हैं तो उसको मौका देना चाहिए, वो करे। तो आपने जो भी किया है अल्लाह ताला उसका आपको बेहतरीन अजर दे। जारी रखें। अच्छा, से इनका मकसूद तो यही है ना कि मुसलमानों के दरमियान में एक फ़िरका वारियत की फ़ज़ा को कायम किया जाए, किसी के मुंह से ऐसे हल्के अल्फाज निकलवा लिए जाएं कि जिससे कि दो ऐसे जो है वो ग्रोहों के दरमियान में कोई तसादुम की ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए कि एक को अच्छा समझने वाले, ज़ाहिर है अकाबरीन को लोग इसी हद तक समझते हैं ना कि वो उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं, वरना इमाम तो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ही हैं हम सबके, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के जो आपसी अंदरूनी मामलात हैं और जो फरुआत हैं उनको असूल के तौर पर पेश करके असूली इख्तलाफ बनवा दिया जाए कि जिसके ऊपर मुसलमान एक दूसरे के दस्ते गिरेबान नजर आएं, और उसके अंदर इनको कोई स्पेस मिल जाए कि ये उसमें घुस के कोई ऐसा काम करे कि देखें जी, ये तो आपस में भी एक दूसरे को ऐसे कहते हैं तो हमें क्या दिया, तो क्या फर्क है। असल मसला ये है, असल मसला वो है, इस तरह से मैं इसको कहूंगा कि जदों ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ ਨੇ। वो बेसिकली करना क्या चाह रही होती है, वो करना ये चाह रही होती है कि जो उसके अपने बच्चे ने हरकतें की होती हैं वो सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके उसके असर को ज़ायल कर दिया जाए, उसकी गलती पे कोई पर्दा डाल दिया जाए। तो ये इनका बेहतरीन हथियार है जिससे कि तमाम मुसलमानों को बचना चाहिए। और ये कभी इस पे ये लेबल लगाते हैं, कभी उस पे वो लेबल लगाते हैं। लेबल लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ इनके हाथ में आए जिससे कि ये मुसलमानों के तफरकों को वाजे करके खुद भी अपने आप को मुसलमानों का एक फ़िरका साबित करने में किसी तौर से कोई पजीराई हासिल कर सकें। दैट्स ऑल। तो इस सियासत का जो रद्द है वो वहाँ पर करने की कोशिश की है कुरान और सुन्ना से। मैं चाहता हूँ कि उसको आप सुने और उसके अंदर से जो तनकीदी निगाह से देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारी तारीफ से बढ़ के हमारी गलतियों की निशानदेही ज़्यादा करें, ताकि अगली दफ़ा जब हम गुफ्तगू करें तो हमारी गुफ्तगू पहले से और निखर के आए सामने और वो कमियां भी दूर हो जाएं जो कि पिछली गुफ्तगू में हमसे हो गई हैं। तो ये मकसूद था। वैसे भी बड़ी दिखाई देती हैं अपने मुसलमान भाइयों की बातों में। अक्सर मुझे गलतियां ज़्यादा नज़र आती हैं और मैं कई दफ़ा उनको हाईलाइट नहीं करता, सब्र कर लेता हूं। जब ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाए फिर कभी बोलना भी पड़ जाता है। पिछले दिनों मैंने एक भाई को प्राइवेट मैसेज करके कहा कि यार ये जितनी आप बात कर रहे हैं ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का बायस है, ये कुछ भी नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है ये बात करने की। लेकिन उन्होंने जारी रखी तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा चलो ठीक है जारी रखे, कोई मसला नहीं। तो गलतियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन जब गलती बड़ी गलती हो तो वो ज़रूर मैं बयान कर देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे लगता है कि अगर मैं ना बयान करूँगा तो फिर इसका बाद में ज़्यादा नुकसान होगा। तो परसों जो आप बात कर रहे थे ना टायर टोनी के साथ, वो जितना वो टाइम ज्यादा गेन कर रहा था ना, जितना वो टाइम बोलता था मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं सुन रहा था, लेकिन उस वक्त हुआ ये कि मैं सफर में था, गाड़ी में मैं जा रहा था और मैं रास्ते में पूरे अल्फाज ये नहीं सुन नहीं रहा था, लेकिन समझ आ रही थी कि वो क्या बात कर रहे। तो जितना वो बंदा टाइम ले रहा था, वो जितनी उससे इरिटेशन मुझे हो रही थी, मैं जो सोचता था ना कि अब अगर इस दफा काजमी साहब ने इसकी मंजी नहीं ठोकी, ये जवाब नहीं दिया, तो मैं ज़रूर आपको मैसेज कर दूंगा। तो ये कोई मुंह की बात नहीं है, हकीकत बात यह है कि मुझे ज़रूरत उसकी नहीं पेश आई। जब भी आपने जवाब दिया है और सही जवाब दिया है, यानी वो शायरी के बारे में मैं जब सोच ही रहा था कि अब यहाँ पर आपको वो हिंदुओं वाली इसकी शायरी पेश करके इसके सामने रख के इससे सवाल करना चाहिए इस अपनी टर्म में, और बिल्कुल ऐन बैन ही उसी टर्म में आपने उसके सामने वो हिंदू औरतों के खिलाफ उसकी गंदी सेक्सी शायरी आपने रख दी। इसी तरह से एक दो टर्न और थी ऐसी जो मैंने सोचा कि भाई यहाँ काज़मी साहब को सख्त जवाब देना होगा, ये वाला जवाब देना होगा, सख्त रिएक्ट करना होगा, और आपने किया। उसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं 2-3% और
एक्सीलेटर के जो मैं ये जो गाड़ी मैं चलाता हूँ ना, इसके वो जो बड़े ट्रेलर होते हैं, इसके स्टीयरिंग के अंदर ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, जरा बड़ी करना स्क्रीन में आपको दिखाऊं एक चीज। अच्छा मैं खुद ही कर ले तो शायद वो बिजी है। ये देखिए, ये जो है ना, ये गाड़ी के एक्सीलेटर, इसको जब मैं ऐसे करता हूं ना एक दफा, तो वो जो एक्सीलेटर का आपको नजर आ रहा है ना साइन, वो ज्यादा चक्कर हो जाते हैं गाड़ी के, वो यानी 400 से 500 हो गए। अगर मैं इसको मजीद करता हूं, थोड़ा सा और दबाता हूं, 1 पॉइंट और दबाया तो वो देखा सुई थोड़ी ऊपर चढ़ गई, 600 चक्कर हो गए। समझ गए हैं भाई? ये मैं मिसाल देना चाहता था कि एक्सीलेटर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि 100 चक्कर और बढ़ा देते तो बिल्कुल 100%, लेकिन फिर भी आपकी फर्स्ट वीएन है, उसमें आपकी फर्स्ट वीएन है सारी गुफ्तगू में, और मैं 100% उससे मुतफिक हूँ। उसमें आपने कोई गलती ऐसी नहीं की जिस पर तनकीद की जाए, तनकीद वाली गलती नहीं है। एक्सीलेटर और देना चाहिए, क्योंकि जब ये इस फेक प्रोजेक्शन को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, आशिक़ सादक नबी पाक का ज़िल बरूज, ऐसे इंसान को नबी पाक का आशिक़ सादक कहना, नबी पाक का ज़िल बरूज करार देना, ये नबी अलैहिस्सलाम को गाली देने के बराबर है। जब ये मिर्जाई ऐसे मौके पर लफ्ज़ ये इस्तेमाल करें कि ये नबी पाक का आशिक़ सादक है, ये नबी पाक का हकीकी बरूज है, ज़िल है, उसी वक़्त 100 चक्कर बढ़ाने हैं आपने उसके, जो है ना, ये क्या हुआ है भाई? कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है शायद, मैंने कोई वीडियो ऑन करके कोई ऐसी चीज दिखा दी है। डैशबोर्ड दिखाया है अमर भाई, गाड़ी का आपने मीटर भी दिखाया है। नहीं, उससे कोई गाड़ी चल थोड़ी रही है। नहीं, वो इसका जो इन्होंने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम लगाया हुआ है इसमें टिकटॉक में ना, एक दिन ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैं गाड़ी चलाते चलाते मैंने ऑन किया, सीट बेल्ट नजर आई है तो उसने मुझे भी रिस्ट्रिक्शन दे दी है। ये चली जाएगी थोड़ी देर में क्या? ये तो नहीं क्या वो आपको ड्रॉप कर दिया, उसने सिस्टम ने ड्रॉप कर दिया, तो आप दूसरी आईडी से आ जाएं फॉर द टाइम बीइंग। मेरा ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਹਰੀਨ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੋ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈਣ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ फ्री हैंड मैनू चाहिए होंगे कई बारी ना। वो आ गए ने वापस, आ गए ने आमिर भाई, आ गए ने वापस। अच्छा, उन्होंने डिस्कनेक्ट ही कर दिया वाकई। हाँ जी, हाँ जी, वो हो जाता है ऐसे, लेकिन अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक हम पा जाइए, मैं जोहरन से जान लगा ये तो वायलेशन कोड कर रहे की विखाया उस्ताद जी। हाँ जी, वो मैं थोड़ा एक्सीलेटर वहां लग गया सी गड्डी दा कि गड्डी दी रेस थोड़ी जी किसी वेले ज्यादा देनी चाहिए है, ਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਆਪਣਾ ਬਹਰੀਨ ਭਾਈ, ਆਈਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ नहीं है ना। ये बिल्कुल दो टोक बिल्कुल जबरदस्त है। एक इससे पहले जो फीडबैक आपने दी थी तलत मलिक वाली, उसको भी इसके अंदर मैंने शामिल किया था थोड़ा सा, लेकिन मुझे पता है आप जो बात कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त बात, जरूर मतलब वो जरूरी बात है जो आपने कही है। अच्छा, असल में क्या है कि जो मैंने वहां पर चीज सोची है ना, वो सोची ये थी, उस वक्त मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वो ये थी कि ये भागना चाह रहा है इस टॉपिक से। हालांकि मिर्जा कादियानी की कितनी चीजें हैं जो कि हम वहां पे रख सकते हैं कि वो खाइन था, वो गालीबाज था, वो मतलब इस तरह से उस तरह से, लेकिन जो असल मुद्दा था ना, वो उससे राह फरार चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मैं निकलूं किसी और तरफ, मैं खत्म नबूवत की तरफ निकलूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वफात और हयात की तरफ निकलूं, या मैं किसी तरीके से इस मौजू को छोड़ के किसी और तरफ निकल जाऊं। तो वो इस तरह की बातें और भी बीच में डाल रहा था। एक गलती जो मेरे से, वहां पर मैं खुद जिस बात का इकरार करता हूं, मुझे टाइम शुरू में लगवाना चाहिए था। असल में मसला किधर पैदा हुआ है? मसला इधर पैदा हुआ है कि वहां पर वो जो हुसैनी साहब की जो वो ब्रॉड है, फैन ऑफ हुसैनी की,
उसके ऊपर कोई मॉडरेटर नहीं था जो कि टाइम लगा सके हमारा आपसी। इसकी वजह से ताहिर अमजद तो आपको पता है कि वो लंबी लंबी बातें करेगा, बहुत लंबी लंबी बातें। नहीं, वो जिस तरह मुझे उसने- याद आ गई है। हाँ, हाँ। वो दूसरी जो बात जो मैं कहना चाह रहा था वो यही थी कि जब ताहिर अमजद ने लंबी बात की ना, कोई 10-12 मिनट की, तो मैंने सोच लिया कि अगर काजमी साहब ने इतना ही टाइम नहीं लिया तो मैं ज़रूर इनको क्रिटिसाइज करूँगा कि अब स्पीकिंग पावर का इम्तिहान है। जब एक बंदा आपके सामने लंबी लंबी छोड़ रहा है तो आपकी भी स्पीकिंग पावर वहाँ पर चेक होगी कि आपने भी ना थकना है, ना अकना है, ना चकना है, तुन के रखना है। फिर 10-12 मिनट माइक छोड़ना नहीं है। फिर आपने वो टाइम पूरा लिया है। वो जो मुझे मेरे ज़हन में था कि यहाँ जितना ये टाइम ले रहा है, क्या हमारे डिबेटर को भी इसके बिलमुकाबल इतना ही टाइम लेना चाहिए ताकि इसको उतना इंजेक्शन लगे। अगर इनको ये तमीज़ नहीं है कि ये माइक जो होता है ना, ये एक टाइम के लिए ही होता है, और बात जो होती है वो एक दफ़ा ही करने से समझ, और थोड़ी और मुख्तसर और जामे बात हो तो वो ज़्यादा बासर होती है, बजाय इसके कि आप कच्ची लस्सी बना के पानी डालते जाएं, वो बोली जा रहा है। तो वो मुझे इससे इरिटेशन हो रही थी। लेकिन आपने जब टाइम बराबर लिया तो फिर मेरा गुस्सा उतर गया कि ठीक हो गया है। तो ये 2-3 बातें थी जो मेरे ज़हन में था कि अगर यहाँ ये रिएक्ट नहीं किया गया तो मैं ज़रूर मैसेज करूँगा। लेकिन आपने सही किया, मेरे ख्याल से कोई ऐसी गलती है नहीं जिसमें कि मैं कहूँ कि बस थोड़ा सा, जब वो आशिक़े सादक और वो कह रहा था ना ज़िल बरूज और की, ये हैं गालियाँ नबी पाक को। इसके जवाब में एक्सीलेटर का जो है ना वो 100 चक्कर उसका इंजन का, मोटर का, वो बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए 100 चक्कर, ताकि इसको पता लगे कि जिसको ये जो ट्रेन में सुथन गिली करके लेटा हुआ हो, और जिस सीरतुल महदी में लिखा हजरत साहब को ट्रेन में जाते हुए इतलाम हो गया, जो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जायदाद से आग करने के लिए जैली रजिस्ट्रियां तैयार करने वाला बंदा, जैली स्टाम्प पेपर तैयार करके ज़रूरतुल इमाम के आखिर पर लिखा हुआ है। ज़रूरतुल इमाम रसाला है ना, 13वीं जिल्द में होगा, ये 14वीं में, उसके आखिर पर जाकर देख लें। वो तहसीलदार जो आया था ना इसका, इनकम टैक्स वाला, उसने भी उसका जिक्र किया हुआ है। ये इसकी अपनी किताब में रूहानी खज़ाइन में लिखा हुआ है कि सरकार ने जैली रजिस्ट्री वहां पर तैयार की है सिर्फ नुसरत जहां के नाम लगा के, बाग 30 साल के लिए उसके आगे गिरवी रख के फजल और सुल्तान को फारिग करने के लिए। ऐसा फ्राडी और मक्कार और धोखेबाज इंसान कहता है, राजा तालमनान उधर रो रहा है, कहता है गालियां देता है। ये गालियां हैं। इंसान के बच्चों की तरह मुझे बताओ कि क्या ये धोखा नहीं है, ये फ्रॉड नहीं किया उसने अपनी औलाद के साथ। नुसरत जहां बेगम के बाग गिरवी क्यों रखा? ताकि फजल और सुल्तान दाना ना पाए उस बाग से। और वो 2 मई 1891 के इश्तिहार में जिक्र किया उसने बाकायदा कि अगर फजल ने तलाक ना दी अपनी बीवी को, मैं इसको जायदाद से आग कर दूंगा, दाना भी नहीं पा सकेंगे मेरी जायदाद से। ये उसने धमकी दी है 2 मई 1891 के मजमूआ इश्तिहारात को इश्तिहार जाके खोल के देख लें। वही करतूत उसने किए। तो जो इस तरह का ब्लैक मेलर हो, जो अपनी औलाद को इस तरह से फ्रॉड करके, धोखा करके, करैक्टर का इतना गंदा आदमी हो, उसको नबी पाक का ज़िल बरूज करार दें और नबी पाक का आशिक़े सादक करार दें, इससे बड़ी गाली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और हो ही कोई नहीं सकती भाईजान। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, उसी वक्त उसका जो है ना धोती उतार के उसको नंगा करके दिखाओ कि ये है जिसको तुम ज़िल बरूज कह रहे हो। उसके लिए गाली देने की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं कह रहा कि गालियां देनी शुरू कर दो माइक पकड़ के, ना ना ना। उसकी धोती थोड़ी सी नंगी करके ना नीचे से खिंच के तो दिखाएं कि ये है जिसको आप ज़िल बरूज करार दे रहे हैं। ये नाली की ईंट है जिसको आप चिबारे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िल और बरूज अगर देखना है, अगर कोई हो सकता है तो वो हो सकता है जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को देखकर उसको फॉलो करके उस पर अमल करके दिखाया है। मेरा चैलेंज है सारे मिर्जाइयों को, 3 इसके करतूत ऐसे दिखा दो, 3 औसाफ इसके बयान कर दो जो कहो कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से इसने कॉपी करके हूबहू करके दिखा दी। कौन से वो 3 काम है? नबी पाक के घर में महीनों तक चूल्हा नहीं जलता, इसके घर में बीवी ने जेवरात बनवाए हुए हैं, गोटा कनारी वाला लिबास पहनती है बेटी। ये नबी पाक का आशिक है, ये नबी पाक का ज़िल बरूज है, तो दुश्मन है नबी पाक का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फोत होने लगे, बीमार हुए,
तो नबी अलैहिस्सलाम ने घर में चंद दिरहम दिनार थे, उम्मुल मोमिनीन को कहा इनको भी सदका कर दो, मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता, मेरे पीछे दिरहम दिनार ये भी सदका कर दिए जो चंद एक पड़े हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रखा हुआ है। उम्मुल मोमिनीन कहती है मैंने ऐसी खुशबू महसूस किया जो सारी जिंदगी महसूस नहीं की। वो पाक रूह जब निकली है जिस्म से, उम्मे सलमा कहती हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने के फौरन बाद आकर आपकी छाती पर हाथ रखा, सीने पर हाथ रखा, उसके बाद मुद्दतों तक मेरे हाथ से खुशबू नहीं गई। हालांकि मैं नहाती थी, गुस्ल करती थी, वजू करती थी, हाथ कई दफा धोती थी, वो उस हाथ से मुद्दतों तक मुझे खुशबू आती रही है जो नबी पाक के सीना या थर पर मैंने उस वक्त रखा जब रूह ने परवाज किया है। इस बदबख्त इंसान को 3 घंटे बाद बर्फ लगानी पड़ गई है। इसकी तो लाश स्मेल मार गई थी। 10 बजे इसकी रूह निकली है गंदी, 3 बजे इसको बर्फ लगा के ट्रेन में रखा है इसको। ये अगर इसको कहें कि ये नबी पाक का जिल और बरूज है, ये गाली है नबी पाक के लिए। तो ऐसे मौके पर जब ये ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश करें ना, ये आशिक़े सादक ते जिल बरूज ते हकीकी ते ड्रामा, उसी वक्त इसकी धोती उतार के इसकी असलियत लोगों को सीरतुल महदी से, जिक्र हबीब से, इसकी अपनी किताबों से, मलफूजात से वो इसके आगे रखेंगे। ये है वो बंदा जिसको तुम कह रहे हो ये नबी पाक का आशिक़े सादक है, जो अपनी औलाद को जमीन से आग करने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड किया कि अपनी जायदाद से फारग करने के लिए देखो जाली रजिस्ट्री तैयार कर 5000 रुपया लिया जिस नुसरत जहां बेगम से। अच्छा जी 5000 करना की है, 4000, अब पैसे तो है ही नहीं, 5000 उस जमाने में होता ही नहीं था, लिए है 1000 रुपया नगद लिया है, लाख दी लानत। वो पूरा करने के लिए 5000 ड्रामा क्या किया है कि अगर तहसीलदार आ गया है तो उसको शो तो करना है ना 5000 कितने है, तो उसको फिर शो करने के लिए तहसीलदार को वो 4000 रुपये के जेवरात डाले हैं कागज में, उसमें स्टाम्प पेपर में, क्योंकि एक स्टाम्प तैयार करना पड़ता है ना गिरवी रखने के लिए कि मैंने ये बात इसके आगे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਣਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਣਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 4000 ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। नबी पाक की बीवियों ने कहा या रसूलल्लाह, ये यहूदिया औरतें, ये क्रिश्चियन औरतें गली से गुजरती हैं, छन छन की आवाज़ आती है, जेवरात पहन, हम तो इमामुल अंबिया की बीवी हैं, हमारे घर में तो कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इनको दुनिया का माल चाहिए, माल दे के इनको फारग कर दो, अल्लाह ताला आपको इनसे बेहतर बीवियाँ अता कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर में वो माल छोड़ते ही नहीं। और उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि भाई उनके घर में इतना जेवर, इतना सोना, इतना माल दुनिया का, हमारे घर में कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने तंबीह नाजिल की कि नबी के घर में बैठ के आप दुनिया के माल की ख्वाहिश कर रही हैं, सोचियो भी ना, अगू नाम ही ना लो। हजरत उमर आते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं, बोरी का वो बिस्तर है बना हुआ, और नबी पाक के जिस्म पर निशान पड़े हुए हैं। हजरत उमर कहते हैं या रसूलल्लाह, कैसर कसरा को देखें, इन ताकतों को देखें जो कुफार की ताकतें हैं, इनके पास इतना माल और आप सैयद वुल्द आदम होकर ये हालात। नबी पाक ने फरमाया उनको दुनिया का माल चाहिए था, उनको दुनिया का माल दे दिया गया। मुझे दुनिया का माल नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ये पैसा नहीं चाहिए। मतलब नबी पाक की जिंदगी की सीरत की कौन सी बात है जिससे इस गंदे आदमी की कोई मुताबिकत पाई जाती है? मुझे एक मिसाल दे दो। मैंने कहा तीन नहीं, एक ही दे दो, एक ही दे दो मिसाल के ये देखो ये नबी पाक की सीरत तैयबा से इसकी ये मुताबिकत, ये ममासलत। एक गंदा आदमी, गलीज आदमी, वो मुफ्ती साहब जो करते हैं ठीक करते हैं। मुफ्ती मुबशर ने कल कोई तेल वाला डंडा पकड़ा हुआ था, मैं तो
वो उसके पास गाड़ी के टायर डलवा रहा था, तो गुमिस्ते के पास खड़ा था, तो मैं सुन नहीं सका वो अल्फाज, लेकिन इतना मुझे पता है कि डंडा उनके पास कोई मोटा था, तेल लगाया हुआ। चीखे मारे मिर्जाई रात को जाके सैनी साहब कुछ ना पूछो, आज साढ़े पल्ले कख नहीं रह गया, सैनी साहब मारे गए, लुटे गए। क्या हुआ है? ओ जी मौलवियों ने आज बड़ी गालियां दी हैं उधर एक ब्राड पर। वो बेगैर तो तुम में अगर गैरत हो तो जहां गालियां पड़ रही हैं तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो नीचे बैठ के, दफा हो जो। अगर तुम इसको नबी समझते हो या तुम्हारे दिल में नबियों वाला कोई तकद्दुस इस बंदे का है, तो उसको वो डंडा मार रहा है और तुम वहां बैठ के सुन रहे हो, और आके सैनी साहब को शिकायत। एक मिर्जाई आता है, उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। अल्लाह की कसम कह रहा, कोई आधी दर्जन के करीब मिर्जाइयों को मैंने देखा। मैं खामोश वहां बैठा हुआ था सैनी साहब की ब्राड पे। जो भी आता है वो कहता है सैनी साहब आज बड़ा जुल्म हो गया, आज बड़ा जुल्म हो गया। वो टी अहमद कहता है गल सुनो सैनी साहब, कोई गल करने वाली है। उधर साड़ी माँ की फ्लांटिंग देते हैं, इधर आके हल्का साहब को कह देता है, ये बंदा बैठा होता है आपके पास, कहता है सैनी साहब इस सवाल का जवाब मैंने लेना है। कहता होता है डंडा बरता साढ़े नाल। अगर तुम में गैरत है तो तुम वहां क्यों सुनते हो गालियां? अगर मुफ्ती साहब ने गालियां दी, मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर मुफ्ती साहब ने वहां पर गालियां दी हैं तो तुम्हें गैरत होनी चाहिए। तुम्हें तो सुननी नहीं चाहिए थी वो गालियां, निकल जाना चाहिए था उस ब्राड से। क्या चले जाए या बर्दाश्त करें, तो सख्त अल्फाज में गाली नहीं है कि नहीं, ये गाली कहते हैं। हम तो यही बोलेंगे ना कि अगर उन्होंने कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर ही नहीं है मुफ्ती नहीं, साहब, अगर तो बर्दाश्त करें। पहली बात यह है कि उसका आगाज किसने किया है? मिर्जाई ने। ये तो जोर दे देकर मुफ्ती साहब आगे से डंडा मार रहे थे, ये कह रहा था लैसलातो वस्सलाम, लैसलातो वस, तो ये तो खुद प्रोवोक कर रहा था कि और गाली दो, और डंडा मारो, और तेल वाला डंडा दो अंदर। मिर्जाई खुद कह रहे थे, तो उसमें मुफ्ती साहब का तो कोई कसूर है ही नहीं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो भी लफ्ज़ बोला है, मैं समझता हूँ उसमें सारा कसूर इनका अपना है। ये खुद एक जाके पहले उसके साथ वाटर के साथ 1 घंटा बात होती रही है मेरा ख्याल है, उसमें तो कोई मसला नहीं हुआ। जब एक मिर्जाई ने आके खुद उनको प्रोवोक किया है, ले इस्लाम घर जाके पढ़ लो उस दज्जाल पर। उसको हमारी शरीयत ने दज्जाल और कज़ाब करार दिया है। दिल करता है बात करो, नहीं दिल करता ना करो, गालीबाज करार दे दो, कोई नहीं मसला, अल्लाह वारस। मैं केड़े पैसे कमाने ने तू टिक टाक दूं? अभी 10 मिनट पहले मुझे वीडियो भेजी है एक बंदे ने, राजा ताल मनान किसी को पूछ रहा है, वो DOKKI की इस तरह की आईडी है, उनको कह रहा है कि मुसलमानों में आप बताएं कि ये सबसे पहले मेरा ही ना आमर नज़ीर बाइखलाक गुफ्तगू करता है। उसने कहा भाई बाइखलाक करता है जब आप पहल नहीं करते, कभी भी उस बंदे ने आपके साथ ज्यादती नहीं किया। जब आप खुद प्रोवोक करते हैं अगले बंदे को, पहल आप करते हैं, तो फिर उसका हक है जवाब दे। उसको नीचे उतार दिया, अभी मैंने वीडियो देखी है। कहता नहीं सकते, तेरे ना गाल नहीं हो सकती, तू बेइंसाफ आदमी, तुझसे इंसाफ नहीं कर रहा, तू कह क्या मरते गाला कटता है। भाई हमारी शरीयत में मिर्जा कादियानी के लिए किसी किस्म का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई एहतराम मलहूज़े खातर रखना ना हमारी शरीयत में है, ना हम उसका कोई एहतराम करते हैं। हाँ, जब तुमसे बात करना चाहेंगे, मुनाजरा होगा, गुफ्तगू होगी, डिबेट होगी, हम पहल नहीं करेंगे। उस वक्त हम कोशिश करेंगे मिर्ज़ा साहब कह के बात करें और पहल ना करें कोई सख्त लफ्ज़ बोलने में। लेकिन अगर आपको ले इस्लाम इतना आया हुआ होगा तो फिर हमारी शरीयत जो उस पर हद लगाती है उसको हम बयान ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। दिल करता करो, नहीं दिल करता ना करो। हमें भी तकलीफ़ होती है, एक झूठे मुद्दई नबूवत पर हमारे सामने बैठकर तुम ले इस्लाम कहते हो ना, हमें भी गुस्सा आ रहा होता है, हमेशा इरिटेशन हो रही होती है। कभी हम बर्दाश्त करते रहते हैं, कभी हम डंडा दे देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता। तुम्हारे लिए वो खुदा होगा तुम्हारा, हमारे लिए तो वो एक झूठा मुद्दई नबूवत है, तो हमारे दिल में उसकी किसी किस्म की रिस्पेक्ट है ही नहीं। बार बार मैं कहता हूं, मुसलमानों के दिल में किसी झूठे मुद्दई नबूवत की कोई इज्जत, कोई वकार, कोई रिस्पेक्ट नहीं है।
लेकिन उसको गाली अगर नहीं देते ना तो उसकी वजह ये है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है ये दौलत अभी नई नहीं है। हमने अपने माँ बाप से सुना है कि बेटा जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज अपना नरम रखते हैं। हम अपना मिजाज आप लोगों के साथ गुफ्तगू के दौरान नरम रखते हैं तो वो अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से रखते हैं, ना कि इस वजह से रखते हैं कि हम उसकी कोई इज्जत करते हैं। इज्जत क्या है उसकी? जिसने नबी पाक के बाद झूठा दावा नबूवत का किया और नबी पाक के तमाम औसाफ और कमालात और खासे नबी अलैहिस्सलाम के उनको अपने ऊपर चस्पा किया और कहा कि मैं भी रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मेरे पर भी इल्हाम नाज़िल हुआ है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कौन सी हमारे दिल में उसकी इज्जत और कदर होगी यार? उस बुद्धू मुसलमान के दिल में होगी जिसको इसकी तालीमात का पता नहीं है। उस मुसलमान के दिल में इसकी कोई रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट बहुत बड़ा लफ्ज है। जो मेरे बाप का, जो मेरा हकीकी बाप है, जिस्मानी बाप है, जो उसका एजाज छीने, उसकी पगड़ी को हाथ डाले, मेरे बाप की दाढ़ी को हाथ डालेगा, क्या ख्याल है मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो तो उन जैसा तो चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। हमारे हजारों बाप हों, उनके जूतों के साथ लगी हुई खाक पर कुर्बान हमारे माँ बाप। हम अपने बाप के साथ जो बंदा ज्यादती इस तरह करने की कोशिश करे, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जो नबी पाक के औसाफ छीनने की कोशिश करे, खासे छीनने की कोशिश करे, कहता है मैं भी रहमतुल लिल आलमीन हूँ, कहता है मैं भी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मैं भी वो हूँ कि अल्लाह की वही के बगैर मैं बोलता ही नहीं। जो नबी पाक के खासे हैं, हर खासे को इसने अपने ऊपर चस्पा किया है। कुरान में आता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार है तो अल्लाह के नबी की इत्तबा ये जरूरी है। ये कहता है मुझे भी अल्लाह ने इल्हाम किया है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अब बताओ, और नबी पाक का कौन सा शर्फ है जो इसने छीनने की कोशिश नहीं की? हमारे दिल में इसकी कौन सी इज्जत होनी यार? रिस्पेक्ट नहीं करता, दूसरे के काबर की रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट कितों? हाँ, गाली नहीं देते अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से, इसलिए नहीं गाली देते, लेकिन उसकी किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारे दिल में। हम अपनी बराड पर बैठकर उसको झूठा कहेंगे, कज़ाब कहेंगे, दज्जाल कहेंगे। हाँ, जब आपके साथ गुफ्तगू होगी, अभी ये मिर्जाइया आ जाए, हम सीधी बात नरमी से करने की कोशिश करेंगे ताकि शायद इनके दिल में कोई उतर जाए, हदायत की कोई बात इनके दिल में उतर जाए। उस वक्त हम नरमी से बात करेंगे। लेकिन जब हम अपने भाइयों में बैठे हुए तो हम तो उसको कज़ाब और दजाल मानते हैं, लानती शख्स समझते हैं, जिसने नबी पाक के हर शर्फ को छीनने की कोशिश की है। आशिक सादक वड्डा थे, ज़िल बरूज वड्डा, ये ज़िल बरूज है नबी पाक का। जो बंदा इसके बारे में सिर्फ इतना सुन भी ले ना कि ये नबी पाक का, वो गाली ही सुन रहा होता है कि हमारे नबी को गाली दी जा रही है, हम सब्र कर। में होते तो वो मिर्जा कादियानी की बैत करते। लो, वो नबी पाक के बारे में उस लानती ने, अंसर रजा ने कहा है, रिकॉर्डिंग नहीं सुनी आपने? मौला अली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे है ना। उसने नबी पाक के बारे में कहा है लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, जो आयत मिसाकुन नबीय्यीन कहता है अगर नबी पाक भी आ जाए वो भी मिर्जा कादियानी की बैत करेंगे। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। कैसे बर्दाश्त करें हम इस लानती तलीम को और लानती तरबियत को और इस लिटरेचर को? कौन सी इज्जत करेंगे इसकी? हम इज्जत नहीं करते इसकी। इज्जत जिससे भाई जो करता है इसकी इज्जत उससे करवा लो, हम तो इसको लानती समझते हैं। इसको मुबारक दे, चंगा है, ब्लैक लिस्ट हो गया। नहीं, फिर हमने भी जो ब्रोड लगाई ना फिर मिर्जा पर उधर ईर के लाए पर, और वो कहता है, मैंने उसे कहा देखे तुम्हारे बंदे ने शुरू की थी बात,
तो मुझे ये कहता है जी कि आपने जी मौलवी का कलमा पढ़ा हुआ है। मैंने कहा जी आपने मरबी का कलमा पढ़ा हुआ है। तो मुझे नीचे उतार के कहता है नीचे बैठो जी जाकर। तो आइंदा हम इनसे राजा साहब से बात नहीं करेंगे जब तक ये उनसे उनकी मजामत नहीं करते, उनसे इस बात की वो माजरत नहीं करते कि वहां पर क्या हुआ है। मैंने कहा कोई गलत हुआ ही नहीं उधर, क्योंकि तुम्हारे बंदे ने आकर बात शुरू की, फिर तुम्हारे लोगों ने आकर शातमियत शुरू की, तो उस पर रिस्पॉन्ड किया गया। इतनी सी बात हुई है और कुछ नहीं हुआ उधर। किसकी मजम्मत करवाना चाह रहे थे? वही जो वो जो सैनी वाली ब्रॉड पर हम बैठे थे, तो अच्छा अच्छा उस बात की। अच्छा अच्छा उस हाँ बड़ा रोला रहा है उसकी इस मजम्मत बात का करवाना। रात को। अच्छा मजम्मत करवाना चाहते हैं उसकी? हाँ मैं पूरा मेरे नेड़े हो, मैं मजम्मत करवाऊंगा। तो अब तो इस राजा तरमनान पर तो बड़ी ब्रॉड मैंने ईर को बोला है लगाओ जरा, इसकी हकीकत सामने लाओ, बाहर लाओ इसकी। ये झूठा इंसान है। असल हकीकत ये है कि इससे मैंने मांगी है रेफरेंसेस। मैंने कहा है जी कि मुझे रेफरेंस दो, क्यों नहीं दे रहे? अच्छा राय साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਮਰ ਭਾਈ? ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਬਰੋਡ, ਹੁਸੈਨੀ ਟੂ ਦਾ ਬਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਹੁਸੈਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਜ਼ਿਲ ਬਰੂਦ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ- ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਜ਼ਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰੂਜ਼ੀ- ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਾਤਮੀਅਤ ਦੱਸੋ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਹੜੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। तो ये क्या समझते हैं कि हम इनको अपने लोगों की हम करेंगे मज़ामत? ये वे वैसे राजा तालमनान का पता नहीं दिमाग खराब है इस झूठे इंसान का, क्या है इसको। ये डिबेट करता है, रेफरेंस नहीं देता, कहता है दूंगा, मिसकोट करता है, झूठ बोलता है हर बात में, और फिर बदमाशी करने की कोशिश करता है। वड़ायत साहब ने बाद में पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान आईडी वाले बंदे विर्क को, कि देखो जी उन्होंने ज्यादती की है। ये कहाँ का इंसाफ है कि अपनी बात रख दो और दूसरे की बात ही ना सुनो। वो इन लोगों के पास अगर हुकूमत आ गई तो ये क्या करेंगे लोगों के साथ? टूटू आ गया वो 1122। इसका जवाब ये है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहली सफ में। ए जे ना दा जवाब, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहली सफ में। ये नहीं, वो अच्छा, लोग होते ने मेरे नहीं, कमीने जब पाते हैं वो क्या है शेर, कमीने जब हाँ वो जो उसने पढ़ा था हाँ कमीने जब अरूज पाते हैं। हाँ। कमीने जब अरूज पाते हैं तो एक मिनट स्टैंप कर रहा हूँ, मैं मसरूफ हूँ दूसरी तरफ, इस तरफ ज़हन नहीं मेरा इस तरफ। वो उसने पढ़ा था, मुशाहिद सईद ने असेंबली में सेनेट में पढ़ा था कि कितने ये कम ज़र्फ हैं गुब्बारे, ज़रा सी हवा से फूल जाते हैं, कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये है बिल्कुल अपनी औकात ही भूल गए हैं। मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम मजम्मत करो अपने मुसलमान भाइयों की। और क्या औकात है तुम्हारी? क्या समझ लिया है? 4 कोड़ियां कमा लिए ने थे, इसलिए अगर हम सख्ती करेंगे ना, कोई मुसलमान तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा यहाँ पर टिकटॉक पर। सिर्फ और सिर्फ जूते पड़ेंगे आपको। अगर तुमने बदमाशी की इस तरह की कोई कोशिश सोची है ना कि तुम मुसलमानों के साथ बदमाशी कर लोगे, तो इससे बड़ी तुम्हारी गलती और होगी कोई नहीं। गलतियां तो पहले भी तुमने बहुत की हैं ऐसी ऐसी गलतियां कर दी हैं कि अब वो इररिकवरेबल गलतियां हो चुकी हैं। नहीं अमर भाई, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें कि ये कह दे लोगों को कि मौलवी का कलमा पड़ा हुआ है
अगर कोई दूसरा जवाबन कहे जी कि तुमने क्या मरबी का पढ़ा हुआ है, हाँ, तो वो क्या मरबी की कोई शान बड़ी है मौलवी की शान से? मुरब्बी की तो इन हो गई है, लेकिन मौलवी का कहने से कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये है इनकी सोच। नहीं, ये काफिर समझे क्या है अपने आप को? बहुत ये सिर्फ इनको एक, मैंने कुछ अरसे से जुतियां मारनी छोड़ दी थी, तो ये काफिर क्या समझते हैं कि ये कुछ बड़े बन गए, मरबी बड़े हो गए हैं। लानत भेजता हूं मैं मरबियों पर, मिर्जा काने पर और मिर्जा मसरूरे पर और इनके सारे खलीफों पर। इन कुत्तों की, ये कुत्तों वाली जगह है इनकी, कुत्तों की जगह पर इनको रखेंगे आइंदा के बाद। ये समझते क्या है अपने आप को? राजा अताल मनान, तू झूठा इंसान है। तो अगर तेरे पास गैरत है तो जो रेफरेंस तूने देने हैं वो दे, है तेरे अंदर कोई सच्चाई तो, वरना तू डिक्लेयर्ड झूठा इंसान है। अच्छा 1122 कह रहे जी नंगी तलवार है, ते 1122 से ते एदे इब्ने बगा 1122 ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਸਲੀਮ ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾ। मैं कहना पतलून गिल्ली हो जाएगी ओदी। वो इन्हें जो पुत्र ही नहीं है, एदा पनवैया, एदा जेठ, पनवैये दा भी भरा, खाली कल्ले मैदान दे भौंकण दे कोड़े ने, कुत्ते ने। कोड़ा भी कहना नन्नू की कहीदा नुकसान दे। 1122 शेर सुन ले। नीचा दी अशनाई कोलों खैर किसे ना पाया, किकर दे उत्ते अंगूर चढ़ाए ते हर गुच्छा आजमाया। तुसी आजमाए बगैर तो ठीक है। और जेड़ा वो इमाम अली ते भौंकदा ना, उन्होंने क्या और भौंक, जिन्ना भौंकेगा ना ਉਹਦੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਾ ਪਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਭੌਂਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। फिर इनकी औकात पर रखना है इनको, इनकी औकात है जहां पर। सच्चे नबियों का इकरार जरूरी है, झूठे नबियों का इनकार जरूरी है। खत्म नबूवत की नगरी में चोर घुसे, खत्म नबूवत वाले हों बेदार जरूरी है। मुश्किल नहीं, ले आओ अपने प्यो ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਾਓ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕ ਕੇ ਗਲਾ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭੌਂਕ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੌਤ। ਬਹਰਾਲ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਚੜ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੱਟਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਨਵੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਨਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਘੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇੜੇ ਆਵਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ? ਰਾਤੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮੂਸਾ, ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਹੈ। जी वो भी टैक्सी ड्राइवर है, बिल्कुल ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਖੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਕਿਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿਰੇ ਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਨਾ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਬਰ? ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਖਰਫ, ਖੋਲ 5ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਖਰਫ ਖੋਲੀ, 57 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਖੋਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਹੈ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਦ ਜਮੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਤੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ इल्म च आगे आए तो नहीं सी आए। बड़ा मजा आया थी उस टाइम, बड़ा मजा आया था। आमिर भाई आपके जाने के बाद ना वो फिर आया था, मगर उसने इस मौजू पर बात नहीं की। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾਸੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਹ ਟੀ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ सैयद सियोवी। सॉरी अमर भाई, ये वड़ाइक साहब आए नीचे, वड़ाइक साहब को ले लें बरीन साहब ऊपर। अच्छा, मुझे बेशक नीचे कर दें। मेरा एक यार सी पाकिस्तान ते ओ सैयद सियोवी ते ओ कहंदा हुंदा सी भाई जेड़ा बंदा थाने वड़दियां ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਵੜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਵਾਲਾਤ ਏ। गेट ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਡੇਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਵੜੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵੜੀ 'ਚ ਸੁੱਥਣ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਛੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਮਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਡੇਵੜੀ 'ਚ ਹਰਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਊਜ਼ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुका मिन्हु यसिद्दून। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। जब ईसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਕਾਲੂ ਆਲਿਹਤੁਨਾ ਖੈरुन ਅਮ ਹੋ ਮਾ ਜ਼ਰਬੂ ਹੁਲਕਾ ਇਲਾ ਜਦਲਾ ਬਲ ਹਮ ਕੌਮੁਨ ਖਸਿਮੂਨ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਬੂਦਾਨ ਬਾਤਲਾ ਲਾ ਤੁਜ਼ਾ ਮਨਾਤ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਆਇਤ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਅੱਖ ਚ ਪਾਇਆ ਰੜਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਰਾਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਨਾਟੇ ਛਾ ਗਏ ਸਭ ਮਰਜ਼ਾਈ ਇੰਜ ਸਨ ਨਾ, ਸਨਾਟੇ ਤਾਰੀ ਸਨ। ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ ਆਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ 3 ਆਇਤਾਂ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਹਿਰੀਏ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ। ਨਾਲੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਫਾਤ ਦੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਸੂਰਾ ਜ਼ੋਹਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ। इब्ने मरियम सुभान अल्लाह। मतलब वो इस गल की तस्दीक कर दिए कि हजरत ईसा इब्ने मरियम जिहड़े है ने उन्हां आना, और दूसरी आयत दे विच जदों उन्हां दे सामने जिक्र कीता जांदा है तो शोर मचाना शुरू कर दिंदे ने, जिस तरह मरज़ई अजकल करदे। किहदे नालों बेहतर ते मिर्ज़ा है कुफार दे सामने। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਚੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬੰਨੀ। ਬਚ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਅਵੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਚ ਜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ, ਬਚ ਜਾ, ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। अच्छा थले पे आता है 1122 आता है, फिर ईसा ना होए, इब्ने मरियम होए। तो मतलब इन्होंने मिर्जे कादियानी नु कोशिश करनी है किसे कुंडी थाने वार दईए, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ 1122 ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਖਰਫ ਦੀ 57 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਓ। ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਰਾਤੀ ਮੂਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਅਮਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੂਰਾ ਜ਼ੁਖਰਫ ਦੀ 57 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮੋ ਅਦਲ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ। ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਲਾਸਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਆਨ ਰੈਕਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾਸਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾਸਮੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਵਾਈ ਨਾਟ? Can't answer our questions, that's why they can't provide us references. ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਲਾਸਮਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਰੈਕਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਖੀਰੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਈਮਾਨੀ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿ ਮਨਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਏ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਏ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨਰਮ ਔਰ ਮੁਤਦਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਮੁਤਅਸਬ ਔਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਔਰ ਹੱਟ ਧਰਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨੀ ਅਖੂਵਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬਾ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾ ਪਿਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏ ਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਦਾ ਟਾਪਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਪਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2-3 ਸੈਸ਼ਨ 4 ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੂੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੈ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਪਕ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਉਸ ਟਾਪਕ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਪਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਪਕ ਇੰਨਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ, ਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ, ਮਰਦ, ਔਰਤ ਘਰ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਅਸੀਂ ਵਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਾਪਕ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 2-ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ